Hi friends, now we come to the last portion of the chapter. In chapter number 2, we had started with concept of electric potential, took the concept of potential energy. We found the potential and the potential energy in case of different systems, single charge particle, electric dipole, yani two charge particle, multiple charge particles, continuous charge distribution, spherical shell. Completing those all cases, we switched over to when a dipole is placed in an uniform electric field, found the potential and the potential energy of the dipole. After completing that portion of the potential, we switch over to capacitance part. We saw what is capacitance, what does it mean by capacitance, the property of storing electric charge on a surface, that's called capacitance. We talked about it, then we came over to the concept of capacitors. Similar to battery and resistors, in the circuit, one more component is that is capacitor. We had studied about it. So it becomes one more component for us, that is capacitor in the circuit. For capacitor, we obtain its capacitance. There are different types of capacitors: parallel plate capacitor, spherical capacitor, cylindrical capacitor. Out of which we studied parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor का capacitance हमने लिया. Then we switch over to its series and parallel combination. How much energy is stored in the capacitor? Energy density का formula लिया. Series and parallel combination लिया जिसमें we can manipulate the value of capacitance. As per manipulate means we can get our desired value of capacitance using different types of combination of given fixed value capacitances. You are given a set of fixed value capacitances, you want your desired value. So how to get it? By series and parallel combination we have seen. Now we'll be studying one more approach of getting our desired capacitance. उसके बारे में हमें आगे बढ़ना है. तो सबसे पहले लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आने क्या होता है? द नेम इटसेल्फ इज डाई इलेक्ट्रिक, यानी दोनों टाइप के चार्ज इसमें है. वो तो सब में ही होता है. Every atom has electrons and protons both, so they are dielectrics. तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी क्या है? तो we know that substances are two types, conductors and non-conductors. The non-conductors are called dielectrics. Non-conductors are called dielectrics. या फिर इनको दूसरे वर्ड में बोलो तो insulators. These are insulators. तो the insulating substances are called dielectric substances. Insulating substance में तुम बोलोगे कि सर नॉन कंडक्टर तो चार्ज तो होगा नहीं. नहीं, चार्ज नहीं होगा ऐसा नहीं है, चार्ज कंडक्ट नहीं करेगा. एंड नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस चार्ज इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट सो, इट डज नॉट कंडक्ट, यानी कि दोस चार्जेस इन इट आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन. उनको नॉन कंडक्टर से फिर इंसुलेटर बोलेंगे. यानी इंसुलेटर नॉन कंडक्टर का कंस्ट्रक्शन देखो, उसका स्ट्रक्चर देखो तो समथिंग लाइक दिस. देयर इज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर व्हिच हैज पॉजिटिव चार्ज एंड एन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो सिंपल एटम में होता है वही. एंड दैट इज अ नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज पूरा आसपास घूम रहा है, positive charge बीच में steady है. The center of the positive charge, the center of concentration of positive charge is center of the nucleus. यानी entire positive charge is concentrated at the center of the nucleus, while the entire negative charge revolving around the nucleus has its center also at the same point. यानी positive negative charge का concentration point same है, उन दोनों का center same है, and their centers superpose are obtained at the same point. This is the situation of a non-conductor, and these centers are available at the same point. That is a property of non-conducting substance. Okay, अब conducting substance में कैसा होता है वो तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डील करेंगे. अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं. If any such atom is subjected to some uniform electric field, suppose positive इस तरफ and negative इस तरफ, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इनटू एक्जिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. देन व्हाट विल हैपन टू दिस एटम? इनिशियली एटम का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर वाज एट द सेम पॉइंट. नाउ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल हैपन इज द पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव व्हाइल नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव. पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट एंड नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. तो एटम के जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन पॉइंट है दैट शिफ्ट्स अ लिटिल बिट. पॉजिटिव शिफ्ट्स टुवर्ड्स नेगेटिव एंड नेगेटिव शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव. सो दिस सेल स्ट्रक्चर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ये नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन पॉइंट, ये पॉजिटिव चार्ज का. ये सिचुएशन क्या है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस हैज हैपेंड. this type of atom distorts or d shapes in this form in presence of the electric field. यानी जो एटम था उसकी ये सिचुएशन हो गई. अब ये क्या चीज है? Just try to understand. This is a negative charge, let's say minus q. उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज प्लस q.
एटम का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, थोड़ा दोनों का सेंटर शिफ्ट हो गया एंड व्हाट वी गेट इज टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. यू विल इमीडिएटली सर ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया. यस, द एटम अज्यूम्स डायपोल फॉर्म. द एटम अज्यूम्स डायपोल फॉर्म. दिस फिनोमेनन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द डायपोल्स, यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक डायपोल इंड्यूस हुआ है. इलेक्ट्रिक डायपोल इज इंड्यूस्ड. आप बोलोगे इंड्यूस वर्ड क्यों? यहाँ पे नथिंग हैज टच्ड एंड सेपरेटेड देम, बाय कांटेक्ट नहीं है, इट इज बाय जस्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्जेस सेपरेट हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन फेनोमेनन. विदाउट कांटेक्ट जो हो रहा है दैट इज इंडक्शन फेनोमेनन. तो हियर वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक डायपोल इज इंड्यूस्ड. ये तो फेनोमेनन हुआ ऑफ कन्वर्टिंग this type of atom into this dipole form. The formation of dipole is called polarization. ये polarization हुआ. Positive charge and negative point के concentration को अलग किया, that's called polarization. And जो produce हुआ उसको कहते हैं electric dipole induced. अब dipole है तो dipole moment भी होगा. The dipole moment of this dipole किस पे depend करेगा? तो it depends on the electric field which has done this work. ये electric field के presence के कारण हुआ ना. Electric field नहीं होता तो ऐसा नहीं होता. इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस हैज हैपेंड. बराबर है. तो यहाँ पे जो हुआ सिचुएशन क्या है कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द डायपोल मोमेंट हैज बीन प्रोड्यूस्ड. सो दैट मींस द डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, कांस्टेंट लगाएं. नाउ रिप्लेसिंग द प्रोपोर्शनलिटी बाय कांस्टेंट वी प्लेस हियर काई ई. अब तुम बोलोगे अजीब सा सिंबल कहां से ले, से इट इज कैपिटल एक्स और उसका एक डंडा थोड़ा स्टाइल से बनाने का. इसको बोलते हैं काई. लिखते हैं CHI बट इट्स प्रोनाउंस्ड काई. काई. तो हियर इट इज काई ई. नाउ ये काई ई क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड है पर प्रैक्टिस आ जाएगा. पूरा एक साथ नहीं पढ़ना है सो. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दिस कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ये कांस्टेंट यहां पे आ जाएगा ना. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज है अगर उसको समझे तो? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज अ कांस्टेंट हियर रिप्लेसिंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन गिविंग रिलेशन टू डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब ये इलेक्ट्रिक दिस ससेप्टिबिलिटी वो क्या देता है? इट शोज हाउ विल बी द बिहेवियर, हाउ विल बी द बिहेवियर ऑफ द गिवन एटम इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड. द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी शोज द बिहेवियर ऑफ एन एटम इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड. गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करेगा ये एटम, उसका आइडिया देता है. या ये सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. नाउ डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट फील्ड्स. इसलिए हर एक के लिए, हर एक सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होती है. इट्स अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन सब्सटेंस बट वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस. कांस्टेंट फॉर अ गिवन सब्सटेंस बट वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस. क्योंकि पर्टिकुलर सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड वो उस पर डिपेंड करता है काई का वैल्यू. Okay, now there is a case of polarization. Polarization है क्या? Shifting of the charge concentration points. यानी पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गया. That's what happens. तो सर यहाँ तो आयनाइजेशन नहीं हो सकता. हाँ, if you increase the electric field intensity, these two will separate. पर हम लोग उस लेवल तक नहीं जाते हैं. That's called ionization. We are not going to ionization. We are just restricting ourselves to till polarization. यानी दोनों अलग हुए पर सेपरेट नहीं हुए. चार्जेस के पॉइंट शिफ्ट हो गए पर एटम सेपरेट नहीं हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव आयन अलग नहीं हुआ. दैट व्हाट इज द केस. फर्दर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं. दिस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स. एक प्रेजेंट एटम ऐसा था, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया. अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, इफ इट रिगेन्स द सेम पोजीशन यानी टेम्पररी डायपोल बना. पर अगर ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल दो तो भी नहीं हिले. इफ इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑन रिमूविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड देन दैट इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक. यानी क्या हुआ कि एटम था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इट डिस्टॉर्टेड एंड ये डायपोल फॉर्मेशन हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो तो क्या वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है? अगर नहीं आता, इफ इट डज नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म यानी कि परमानेंट डायपोल्स आर फॉर्म. अगर परमानेंट डायपोल फॉर्म हो जाए, परमानेंट डायपोल फॉर्मेशन हो जाए तो देन दैट इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक. पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो ये डायपोल बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओ तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए.
Such type of substances are called non-polar dielectrics. तो non-polar dielectric में क्या होगा? Temporary dipoles will be formed. Temporary dipole formation. यानी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक डायपोल फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड गया वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक डायपोल फॉर्मेशन, जैसे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड गया ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. ये तो हमारे क्लासरूम जैसा हो गया. क्लासरूम में देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स, बराबर. स्टूडेंट्स में बॉयज एंड गर्ल्स हैं. जब कोई टीचर नहीं है क्लास में, फ्री टाइम है, तो सारे मिक्स होकर धमाल मस्ती कर रहे होते हैं. लड़के लड़के सब साथ में बैठे होते हैं, धमाल मस्ती कर रहे होते हैं. पर जैसे ही टीचर आया, हमारे इंडियन क्लास सिस्टम में क्या होता है? गर्ल्स ऑन वन साइड, बॉयज ऑन अदर साइड, डायपोल फॉर्मेशन होता है. अगर टीचर के जाने के बाद भी अगर डायपोल फॉर्मेशन एज इट इज रहा, द परमानेंट सेटअप वैसे ही रहा, तो दैट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक. एंड अगर जैसे ही टीचर गया सब वापस घुल मिल के बैठ गए, दैट बिकम्स टेम्पररी डायपोल्स. यानी जब तक टीचर है, क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब तक डायपोल्स. इलेक्ट्रिक फील्ड गया तो वापस नॉर्मल फॉर्म में. दैट्स कॉल्ड नॉन-पोलर डाइलेक्ट्रिक. ओके, सो दैट्स अ केस ऑफ पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. हमें इसे और आगे लेना है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर ये ऐसा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, उसका यूज करें बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. 2 points are to be added in this. One thing is that when the dipole is formed here, when the dipole formation happens, this dipole is oriented along the electric field line. The dipole is oriented along the electric field line. Such a dipole is called linear dielectric. This is called linear dielectric, in which the dipole is oriented along the along the electric field. एक ये हो गया. दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यहाँ जो इंड्यूस हुआ, दैट वाज फॉर वन एटम. यहाँ पे हम जो लेते हैं रिलेशन, उसमें इट बी कैपिटल P, which is called polarization. Polarization intensity. Here we take polarization intensity. This is because we have to match the dimensional equation both the sides. So here it is capital P. Now polarization intensity यानी क्या? The intensity of polarization is nothing but total dipole moment induced upon volume. Total dipole moment induced per unit volume is called intensity of polarization. तो यहाँ पे intensity of polarization proportional to V, and the constant comes out to be electric susceptibility. So now let's see what happens when such dielectric substance placed in a capacitor. Capacitor की दो प्लेट के बीच में we are placing this dielectric substance. Suppose these are the two plates of capacitor, and we fill this gap between the two plates with the dielectric substance. ये dielectric substance यहाँ पे place कर दिया. खास ध्यान रखें, ये बोल्ड जो बना है, these are the plates, and अंदर जो लाइन है, that is dielectric material filled between the two plates. Something like a filling between two breads making a sandwich. ना यहाँ पे ये कैपेसिटर हो गया, बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है. Connecting this capacitor to a battery. Now what will happen? बैटरी का पॉजिटिव ये प्लेट पे, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, and negative on this plate. So here a negative charge will be deposited on the plate. Due to this charge, an electric field will come into existence between the two plates. A uniform electric field between the two plates. Okay. Now ये electric field intensity के कारण, ये electric field के कारण, the substance of the dielectric material undergoes polarization, and you find that dipoles are formed. ये side negative, ये side positive. You will find that dipoles are formed, negative, positive. Okay. So this is what happens. So we find that all the atoms of the dielectric undergoes dipole formation, and such type of dipoles are formed. Okay. तो what will happen within the dielectric substance? ये dielectric substance के अंदर की बात करें तो a layer of negative charge will be formed on this end, a layer of positive charge will be formed on this end. डायपोल के अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज.
तो नियर टू द प्लेट हैव ए पॉजिटिव चार्ज प्लेट, देयर विल बी अ नेगेटिव लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड नियर द नेगेटिव चार्ज प्लेट्स देयर विल बी अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये जो घटना घट रही है वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर की बात है। प्लेट्स पे चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सर बीच वाले चार्ज का क्या? तो these two will neutralize, these two will neutralize, positive negative neutralizes, तो बीच का पार्ट तो न्यूट्रल हो गया। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के दो एंड, एक ये एंड लेफ्ट हैंड बिकम नेगेटिव एंड ये राइट हैंड बिकम्स पॉजिटिव। ओके, सो देयर विल बी अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएटेड विद इन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आल्सो। इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? द चार्ज इन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। नाउ प्लेट पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कैपेसिटर के प्लेट पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये प्लेट, ये जो चार्ज है, चलो इस चार्ज का नाम देते हैं, the charge on the plate is called free charge. Charge on the plate is called free charge. Free charge in the sense they can move anywhere in the circuit. Charge on the plate, जो sigma density बोले वो। दूसरा, charge distribution created within the dielectric substance. ये कैसे है? These are dipoles formed due to presence of electric field. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हट गई, बैटरी हटा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हट गई, तो they will regain their original form. तो चार्ज गायब हो गया, यानी ये चार्ज नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरा बात है कि दिस चार्ज हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट कैन नॉट एस्केप इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल रिमेन विद इन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ओनली। सो इन दैट सेंस दीज आर कॉल्ड, इन दैट सेंस दिस चार्जेस आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रिक चार्ज, दे आर नॉट फ्री। प्लेट पे फ्री चार्ज है, अन्य डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो उसको बाउंड इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो तो दे विल रिमेन इनसाइड ओनली, दे विल नॉट गो आउटसाइड इन द सर्किट। ये खास ध्यान रखो, वैसे उनको बाउंड चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। एंड द चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज इज सिग्मा बी। सिग्मा बोला है प्लेट पे चार्ज डेंसिटी फ्री चार्ज के लिए, एंड सिग्मा बी इज फॉर बाउंड चार्ज डेंसिटी, बी फॉर बाउंड चार्ज। अब यहां पे कैसा सब्सटेंस प्रेफर करेंगे? डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो हमें कैसा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लेने का, चूज करने का, पोलर या नॉन पोलर? तो लेट्स डिस्कस दैट। ड्यू टू दिस बैटरी चार्जेस डिपॉजिट ऑन द प्लेट, ओके, उसके कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे डाइपोल फॉर्मेशन हुआ इन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में डाइपोल फॉर्मेशन हुआ तो हियर द चार्जेस हैव बीन क्रिएटेड। अब ये जो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को होल्ड करके रखेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को होल्ड करके रखेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को होल्ड करके रखेगा, एंड ड्यू टू दैट चार्जेस आर हेल्ड अप ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के प्लेट चार्ज को होल्ड अप करता है बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस। पर जैसे ही बैटरी हटाई, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, तो ये इसको छोड़ देगा, तो ये चार्ज फ्री होकर फिर घूमना शुरू करेगा। दिस चार्ज हैज टू बिकम फ्री, यानी कि इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन द सब्सटेंस रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, बाउंड चार्ज निकल जाएगा, एंड इस चार्ज को रिलीज करेगा एंड द चार्ज विल मूव इन द सर्किट। पर अगर ये कब पॉसिबल होगा? अगर नॉन पोलर सब्सटेंस है तो। पर अगर ये पोलर सब्सटेंस रखा था अंदर, व्हाट विल हैपन? इमेजिन इफ देयर वुड बी अ पोलर सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंस में डाइपोल डज नॉट रीगेन ओरिजिनल फॉर्म, द डाइपोल फॉर्मेशन इज परमानेंट। तो ये नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, बैटरी हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड गई, डाइपोल रिमेन एज इट इज। तो नेगेटिव चार्ज बोलेगा मैं पॉजिटिव को छोड़ूंगा ही नहीं, तो यहीं रहे, कहीं नहीं जाना है, तो दैट चार्ज विल नॉट बी एबल टू मूव इन द सर्किट, तो फिर चार्ज वापस मिलेगा ही नहीं। एक बार चार्जिंग हो गया, डिस्चार्जिंग तो पॉसिबल ही नहीं होगा, एंड यू नॉट बी एबल टू गेट द चार्ज बैक। तो कैपेसिटर का काम क्या? चार्ज स्टोर करने का, पर वापस नहीं मिलेगा। ये कैसा स्टोरेज हुआ कि यू नॉट गेट इट बैक? बराबर है। इससे व्हाट विल यू प्रेफर? आउट ऑफ द टू व्हिच विल यू प्रेफर? परमानेंट डाइपोल्स या टेम्पररी डाइपोल्स? परमानेंट डाइपोल होंगे तो चार्ज जो डिपॉजिट हो प्लेट पे वापस नहीं मिलेगा, यू नॉट गेट इट बैक, द कैपेसिटर विल ऑफ नो यूज। पर अगर नॉन पोलर होगा तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटी, दे विल regain the original form, they will regain the original form and thus releasing the charge on the plate, and that plate charge release on the plate will move in the circuit, यानी कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग पॉसिबल होगा। इससे व्हाट वी प्रेफर इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रादर देन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक अंदर डाल दिया, तब सिचुएशन क्या है? एक फ्री चार्ज प्लेट पे जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक बाउंड चार्ज की डेंसिटी सिग्मा बी, ओके। तो ये देखने को मिलता है व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन अ कैपेसिटर। अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किस फॉर्म का होना चाहिए? गैस में वी नो दैट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली। लिक्विड में रैंडमनेस कम होता है, लिमिटेड होता है, सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं।
सॉलिड में सारे ऑल द मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर फिक्स्ड एट द रिस्पेक्टिव पोजीशंस परफेक्टली, तो उनमें तो कोई चांस नहीं है। नाउ सॉलिड में द अरेंजमेंट इज सो मच परफेक्ट कि उसको पोलराइज करना बहुत ईजी हो जाएगा, इट बी वेरी इजी टू पोलराइज देम, क्योंकि सारे अपनी जगह पे फिक्स हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी लगा तो भी यू गेट पोलराइजेशन। लिक्विड में पहले थोड़ा चंचल है, इससे पहले चंचल मॉलिक्यूल्स को पहले बैठाना पड़ेगा। द एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैव टू बी मेड डॉर्मेंट एंड सिट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, पहले फिक्स करना पड़ेगा, फिर बाद में उसका पोलराइजेशन पॉसिबल होगा। गैस में तो यू नो हाईली रैंडम मोशन, तो फर्स्ट मच ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज्ड अप इन कंट्रोलिंग द गैस मॉलिक्यूल्स, ब्रिंगिंग देम टू अ स्टिल पोजीशन एंड देन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज, देन पोलराइजेशन अकर्स। तो इनमें से कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा एज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक? ऑब्वियसली योर चॉइस विल बी सॉलिड, क्योंकि उसमें पोलराइजेशन एकदम इजी हो जाएगा। लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है, गैस में कभी नहीं। तो द मटेरियल केप्ट बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज यूजुअली सॉलिड, रेयर केसेस में लिक्विड भी यूज करते हैं, पर्टिकुलर उसके एप्लीकेशंस हैं, गैस तो कभी नहीं। ओके, सो विच सब्सटेंस चोजन टू गेट द डाइलेक्ट्रिक, वो आ गया। अब ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने से फर्क क्या पड़ता है, चलो देखते हैं क्या क्या फर्क पड़ता है। पहला पार्ट, इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ना होता तो सिचुएशन क्या था, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर वाज A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, इसको हम लोग C0 बोल देते हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, बराबर है। इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैपेसिटेंस C0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E0 which is sigma upon epsilon 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ चार्ज कौन सा, फ्री चार्ज ओनली, क्योंकि मटेरियल नहीं है, ऐसे नो बाउंड चार्ज। फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा दोनों के बीच में, उसको V0 बोलते हैं, व्हिच इज E0 इनटू द डिस्टेंस, राइट। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वी फाइंड दैट कैपेसिटेंस C becomes A epsilon upon D, where epsilon is the dielectric constant of the substance, जिसको हमने आगे लिया था, याद होगा शायद, K into epsilon 0, K into C0। सो कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स, हमने आगे डिस्कस किया था इसे, यार चलो स्टेप्स ले तो कुछ ऐसा बनेगा, A into K epsilon 0 upon D, so that's K times K epsilon 0 upon D, so that will be K times C, where K is the dielectric constant. Therefore we find that capacitance becomes K times. So placing the dielectric substance will make the capacitance K times. K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस प्लेस्ड इन बिटवीन, तो आपको कैपेसिटेंस कितना चाहिए उसके हिसाब से यू कैन प्लेस द डिफरेंट मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक लिस्ट, स्टैंडर्ड वैल्यूज का लिस्ट है उसका, अलग अलग मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, जैसे पेपर के लिए सम वैल्यू, ग्लास के लिए सम वैल्यू, वाटर के लिए सम अदर वैल्यू एंड सो ऑन, वो टेबल अवेलेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द योर डिजायर्ड कैपेसिटेंस you can use the dielectric substance. So K की वैल्यू अलग अलग रख के you can get different capacitance, and this is also a way of obtaining your desired value of capacitance. Series parallel connection करो या फिर मटेरियल चेंज करो, you get your desired capacitance. Okay. Further इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी जो पहले सिग्मा था अब कितना हो जाएगा, आफ्टर पोलराइजिंग हियर व्हाट विल हैपन टू द चार्ज डेंसिटी, तो इट विल बिकम सिग्मा माइनस सिग्मा बी। तुम बोलोगे माइनस कैसे हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑपोजिट चार्ज है, इससे क्या होगा, ऐड करेंगे टोटल मारेंगे, सिग्मा प्लस ऑपोजिट चार्ज इससे माइनस सिग्मा भी लिखेंगे ना, तो द चार्ज डेंसिटी इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वाज सिग्मा, बट इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस विल बी effectively sigma minus sigma b. So here electric field intensity will become sigma minus sigma b upon epsilon 0, and इसको वर्कआउट करें तो it comes out to be E0 upon k। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक थी उसका kth पार्ट हो जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी becomes kth पार्ट इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एंड उसी हिसाब से पोटेंशियल की बात करो तो V इक्वल टू नाउ E into D, दैट इज E0 into D by K, तो potential also becomes kth part. This is a dielectric constant. एक और रिलेशन याद रखना है खास कि this dielectric constant is equal to 1 plus chi e, a very important relation showing relation between dielectric constant and electric susceptibility. Electric susceptibility, dielectric constant तो unitless quantity है, तो susceptibility भी unitless and dimensionless हो जाएगा. Remember well, it will be unitless and dimensionless quantity. Okay, so this is regarding what will happen when a dielectric substance is placed between two plates of a capacitor.
राइट। नाउ हियर व्हाट वी फाइंड इज दैट, पढ़ा हमने क्या, एक तो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिना कैपेसिटर स्टार्टिंग में पढ़ा, अब डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने से उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस वही है कि डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट बिटवीन द टू प्लेट्स वेरीज इट्स कैपेसिटेंस एंड वी कैन गेट आवर डिजायर्ड कैपेसिटेंस बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल, बाय एडजस्टिंग द मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। ये तो हो गया रिगार्डिंग डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के साथ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस की सारी बातें यहाँ खत्म हो गई। अगर आपके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है, इफ यू आर यूजिंग एन ओल्ड टेक्स्ट बुक, देन देयर विल बी अ टॉपिक कॉल्ड वैन डी ग्राफ जनरेटर आल्सो। वो टॉपिक अब बुक में नहीं रहा है। नई बुक अगर परचेस करोगे 2019 के बाद का एडिशन, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। इसलिए अगर आपकी बुक में प्रेजेंट है, प्लीज डोंट कंसिडर इट, टेक अ पेंसिल, पुट अ बिग क्रॉस ऑन इट। आपको नोट्स में भी वो नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि सिलेबस अपडेट हो गया था, उसके बाद बुक, नवी बुक अभी तक अवेलेबल शायद नहीं हुई है। ओके, सो डोंट वरी, अगर वैन डी ग्राफ जनरेटर है, इट इज बियॉन्ड, इट्स नॉट इन आवर सिलेबस। दैट कंप्लीट्स द थियरी पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2।